بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم سبوں کو یہ موقع غنیمت حاصل ہوا کہ ہم اور آپ اس پاک بزم کا حصہ بنے، اس مجلس کا حصہ بنے، اور یقیناً فتنوں کے دور میں جہاں پر چہار جانب افراتفری، اختلاف، انتشار اور قتل و غارت گیری عام ہیں، ایسے میں ایک ایسی کتاب کی طرف اور اس کی جستجو میں اپنے پاؤں کو حرکت دینا اور اپنی ذہن سازی کرنا اللہ کی طرف سے بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا، نبی بنایا، ہم جانتے ہیں 40 سال ایک دن کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اس نبوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید کو نازل کرنا، یہ قرآن حکیم اور قرآن مجید کی ایک اعلیٰ پہچان ہے کہ یہ قرآن رسول کی تصدیق کے لیے نازل ہوا، کہ ہاں یہ قرآن گواہی اور شہادت دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے، نبی ہے اور رسول ہے۔ ایسے میں ہم سبوں کی جو بھی ادنا و اعلیٰ و ارفع گناہ ہو، معصیت ہو، اللہ سے ہم پر امید ہے کہ اللہ ان سب کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ، اور جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات ہو، دعائیں ہوں، اللہ ان کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے جو سورت ختم ہوئی، سورۃ النساء، نساء کا معنی ہوتا ہے عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے عورت ذات کو کہ قرآن کے اندر ایک سورت کا نام ہی عورتیں ہو گیا، جو اس سے پہلے کسی بھی مذہب یا دین یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یہ مقام نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ، یہ ایک جو ہے مدنی سورت ہے، اور یہ بات بہت پہلے شروع میں گزر چکی ہے کہ سورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک مکی سورت اور دوسری مدنی سورت۔ ہجرت سے پہلے جو سورت نازل ہوئی اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں گئے تھے تو جو بھی سورت نازل ہوئی اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے، اس کے بعد جتنی بھی سورتیں نازل ہوئی، گرچہ مکہ ہی میں کیوں نازل ہو، وہ مدنی سورت ہے۔ یہ فارمولہ یاد رکھیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، ہجرت سے پہلے مکی، ہجرت کے بعد مدینہ مدنی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری میں، تو بہت سے صحابہ مکہ میں رہنے لگے، اب بہت سی آیات مکہ میں اتری، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے، مکی یا مدنی؟ تو مکی اور مدنی صورتوں کا تعلق اس شہر کے نام سے نہیں ہے، ہجرت سے ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ اس شہر کے نام سے نہیں ہے کہ جو مکہ میں جو صورت نازل ہوئی مکی ہو گئی اور جو مدینہ میں نازل ہوئی مدنی، ایسا نہیں۔ ہجرت سے پہلے جو صورت نازل ہوئی وہ مکی ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی وہ مدنی صورت ہے۔ یہ سورہ جو ہے سورۃ المائدہ، یہ مدنی سورہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس پوری سورت میں 120 آیات ہیں، یعنی 120 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے، اور اس کے اندر جو ہے 16 رکوع ہے۔ ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں
तो आप देखेंगे कुरान में जब भी सूरत शुरू होती है तो ये चीज़ नज़र आता है, या जो बिस्मिल्लाह के जो ऊपर में है। अब हर सूरत में देखिए पूरे कुरान में जो बिस्मिल्लाह से ऊपर है, ये टोटल चीज़ें अरबी में लिखी हुई है, जो सूरत की मुख्तसर डेफिनेशन बयान करती है, बिल्कुल शॉर्ट में, तफसील नहीं बताती कि हाँ इस सूरत कौन सी है। आप पूरे कुरान पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि सूरत मक्किया या वल मदनिया, इस तरह का लिख कर आएगा। यहाँ भी लिखा है सूरतुल माइदा मदनिया, सूरत माइदा जो है मदनी सूरत है। हाँ, वमा वमिया तो इशरून आयतन, और इसमें जो है 120 जो है आयत है। अरबी में मियाँ कहते हैं 100 को, और इशरून कहते हैं 20 को। जैसे अशरा 10 को कहा जाता है, इशरून 20 को कहा जाता है। तो ये एक अरबी का काउंटिंग है, गिनती। और इसमें जो है 16 जो है रुकू है। इस आयत की जो सबसे बड़ी, इस सूरत की जो सबसे बड़ी खुसूसियत है वो ये है कि इस पूरी सूरत के अंदर बिलखुसूस शुरुआत में करीब करीब 20-30 आयत, इसमें आपको उन चीज़ों के बारे में बयान होगा जो चीज़ें हलाल है, और उन चीज़ों के बारे में बयान जो चीज़ें हराम है, खासकर खाने पीने के ताल्लुक। और भी दीगर चीज़ें बयान होंगी, सिर्फ हिल्लत या हुर्मत खाने पीने का मामला नहीं है कि खाना ये हलाल है या हराम। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक मिसाल के तौर पर जब कोई आदमी हज करने जाता है तो एहराम बांधता है, चाहे उम्रा करने जाए तो एहराम बांधता है। तो एहराम बांधने की सूरत में हम शिकार नहीं कर सकते, चाहे किसी भी जानवर का, शेर हो, बाघ हो, चीता हो, कोई भी जानवर हो, हम शिकार नहीं कर सकते। हराम है ना यहाँ पे चीज़ें। यहाँ खाने पीने का तो मामला नहीं है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जब हिल्लत या हुर्मत की बात होती है तो ऑटोमेटिक हमारा ज़हन समझ जाता है कि हलाल हराम का मतलब हुआ खाने पीने की चीज़ें, क्या चीज़ें हलाल है क्या चीज़ें हराम है। ये तो है अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे औरतों का बेपर्दा घूमना हराम है ना, ये हराम चीज़ है। यहाँ पर इस सूरत के अंदर ये सब चीज़ें बयान होंगी इंशाअल्लाह, खासकर शुरू के आयात में अल्लाह ने जो चीज़ें बयान किया। सबसे अहम चीज़ ये कि हिल्लत और हुर्मत के मुताल्लिक हमारे अंदर जो कमी और खामी पाई जाती है ये बहुत अहम है, जिसको मैं बयान किए बगैर अगर सूरत का तर्जुमा शुरू कर दूँ तो ये इनकम्प्लीट, नामुकम्मल होगा। उमूमन क्या होता है कि जो चीज़ें हलाल या हराम है उसके बारे में एक तब्दीली और एक जो है क्या कह सकते हैं उसको, कि सबको खुश करने वाला मामला आजकल हमारे यहाँ ज़्यादा है। जबकि एक इंसान, याद रखिए, एक इंसान सबको खुश नहीं कर सकता, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। अगर कोई ये सोच कर कोशिश करता है वालेकुम सलाम कि हम सबको खुश कर देंगे, तो मेरे हिसाब से उसकी सोच सही नहीं है और कर ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर शख्स हम नहीं हैं, लेकिन आप मक्का वालों को खुश नहीं कर सकते। आप अपने ख़ानदान में जो लोग थे उनको खुश नहीं कर सके, और आपने कभी इस थ्योरी पर काम भी नहीं किया कि सबको खुश करना है। आपने कभी काम नहीं किया, आपने एक थ्योरी अपनाई, अल्लाह को खुश करना है, और उसी पर चले। अब चाहे अल्लाह को राज़ी करने में जो रूठ जाए, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बस एक चीज़ को आपने फोकस किया, अल्लाह को राज़ी करना है, तो उसका अंजाम देखिए क्या हो, रिजल्ट है ना, कि आज माशाल्लाह हम लोग मुसलमान। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको खुश करते, जैसे एक मकाम पर जब मक्का वाले बड़े परेशान हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा बुझा कर थक गए, तो चूँकि आपका ख़ानदान बहुत बड़ा ख़ानदान था, बनु हाशिम, कुरैश ख़ानदान से आप ताल्लुक़ रखते थे, और मक्का के अंदर ये ख़ानदान बहुत नामी गिरामी ख़ानदान था। अक्सर लोग इसकी मुखालफत नहीं करते थे क्योंकि बड़ा ख़ानदान था। यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की जब साजिश हुई तो उसमें क्या फैसला हुआ, बड़ा तारीखी फैसला है। कोई एक आदमी खड़ा नहीं हुआ कि हम नबी को मार देंगे, उनके घर पर रात को अटैक करें, नहीं। जितने वहाँ कबाइल थे, कबीले थे, सब कबीलों से एक एक फर्द को चुना। क्यों? ताकि जब बनु हाशिम रिटेलिएट करे, जब वो जो आप क्या करे उस पर प्रहार करे, तो सबको दुश्मनी लेनी पड़ेगी, सबकी दुश्मनी लेनी पड़ेगी। किसे किसे लड़ेगा बनु हाशिम? तो तय हुआ कि हर खानदान से एक आदमी, कबीले से एक आदमी आएगा, और 12 या 16 लोगों की टीम बनी
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके बिस्तर पर कत्ल कर दिया, है ना। ऐसी ना हुआ था, बड़े तारीखी किताबों के अंदर। सोचिए कितना बड़ा खानदान था कि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था कि भाई 2 आदमी में खड़े हो गए तो 2 आदमी को तो लोग मिटा देगा। वो अलग बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की बात करते हैं और ये उनके बाकी खानदान वाले कुफर करते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता है कि हमारे खानदान का आदमी, इस पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। तो जब ये तंग आगे मक्का वाले तो ये लोग कहाँ चले गए, अबू तालिब के पास गए जो उनके चचा थे और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मोहतरम, है ना, उनके पास चले गए और उनसे कहा, ये कह सकते हैं थोड़ा धमकाया भी और थोड़ा समझाया भी कि आप मोहम्मद को मना कीजिए, वो आपकी बात सुनता है, आपकी इज्जत करता है, आप उसके चचा है, सरपरस्त है। वालिद के इंतकाल के बाद दादा ने किफालत की, दादा के इंतकाल के बाद अबू तालिब ने किफालत की, तो इस हिसाब से आप सरपरस्त गार्जियन हो गए, चचा तो है ही। आप समझाइए उनको कि वो ये जो चीज़ें कर रहा है ये चीज़ ना करे, जो हमारे माबूदों को बुरा भला कहना, सारे माबूदों को इनकार कर देना, कहना कि इन सारे माबूदों के मुकाबले में एक अल्लाह की इबादत, इससे हम लोग के आपस की बेचैनी बढ़ रही है। हमारे जो अदर्स ममालिक से जो हमारे ताल्लुकात और रिलेशन वो खराब हो रहे हैं। जो मक्का तजारती मरकज हुआ करता था, ट्रेड सेंटर, वो अपना वकार खो रहा है। लोग आ नहीं रहे यहाँ तजारत करने के लिए मोहम्मद का नाम सुनकर कि कौन एक पागल है, दीवाना है जो कहता है कि अल्लाह एक है, कुरान पर ईमान ला, मोहम्मद हम नबी है। इस तरह के लक़ब से आपको पुकारा जाता था और कुरान में जिक्र है मजनून का लक़ब, साहिर का लक़ब, साहिर जादूगर, मजनून पागल, है ना। और ये भी उन्होंने कहा था कि इसका अंजाम बुरा होगा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हरकत से बाज नहीं आते हैं तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो ये कह सकते हैं कि साइलेंटली धमकाया भी और समझाया भी। समझाया ये कि आप मोहम्मद से बात कीजिए, अगर वो माल दौलत चाहता है तो इतनी दौलत दे दी जाएगी कि उसको खाने पीने की कमी नहीं होगी, और मक्का के अंदर सबसे खूबसूरत लड़कियों को उससे निकाह कर दिया जाएगा। उससे कहें, ये उन्होंने एक इंतबा जिसको कह सकते वार्निंग देकर चले गए। हजरत अबू तालिब रजी माफ कीजिएगा, वो तो चूंकि कुफर में इंतकाल हुआ था, इन्होंने अपने भतीजे से मुलाकात की और कहा कि क्यों तुम मक्का वालों की दुश्मनी मोल लेते हो, क्यों नहीं उनकी बातों को सुन लेते, तुमको जो करना है करो, उन लोगों के पीछे क्यों पड़े, देखो तुम छोड़ दो इन चीज़ों को। और उन्होंने कहा है कि जो माल दौलत पैसा चाहिए वो सब तुमको दिया जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बेहतरीन मौका था सबको खुश करने का, चलो इन लोगों को खुश कर दिया जाता है, हम तो दिन पे चलेंगे, अपना दिन पर अमल करेंगे, हम पैगंबर हैं। अब चूंकि लोग नाराज हो रहे हैं, चलो इनको खुश किया जाए। और ये कौन लोग थे मालूम है, बड़े खतरनाक लोग थे। बात जान की बाजी की थी। ये आजकल का मामला नहीं है कि अगर ये चीज़ कर लेंगे तो 2 तमाचा खा करके बैठ जाएंगे, नहीं, वहाँ जान की बाजी की मामला था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए ये मुझे पैसे का जो ऑफर दे रहे हैं या कह रहे हैं कि मक्का की सबसे खूबसूरत लड़की से आपका निकाह करा दिया जाएगा, तो आप चचा उनसे कह दीजिए कि अगर ये मेरे एक हाथ में चांद और एक हाथ में सूरज ला कर देंगे तो मोहम्मद अपने दिन से हट नहीं सकता। आप खुश कर सकते थे मक्का वालों को, उससे बहुत फायदा होता। एक फायदा ये होता कि सहाबा इकराम को कुर्बानियाँ नहीं देनी पड़ती, दूसरा फायदा ये कि मक्का नहीं छोड़ना पड़ता, कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता, आप भी अपना करें हम भी अपना करें। आजकल होता है, जैसे आजकल ऐसे होता है, हम मुसलमान उम्मत मुस्लिमा हम लोग समझौते के मूड में चल रहे हैं, सबको लेके चलना है। तो अल्लाह के नबी ने क्यों नहीं सबको लिया, क्या जरूरत थी? आपके एक फैसले की वजह से कई सहाबा शहीद हो गए, हुए कि नहीं हुए? आपका इनकार इस बात की दलील थी कि तशद्दुद और बढ़ गया सहाबा के ऊपर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। ये आयत करीमा, ये पूरी सूरत, इस सूरत के अंदर हिल्लत और हुर्मत का बयान है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें आएंगी, आप खुद तर्जमा से पता लगाएंगे कि हकीकत में हम समझौता कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। हर जगह आदमी समझौता नहीं कर सकता, ये मुमकिन ही नहीं है कि आदमी समझौता करे। अल्लाह की भी इबादत करे और गैरुल्लाह की भी इबादत करे, हो ही नहीं सकता। दिन भी हो और शाम भी हो ही नहीं सकता। या तो शाम होगी या तो दिन हो गया, तो उजाला है तो अंधेरा, दो में से एक ही चीज होगा। हम दोनों चीज चाहते हैं, नहीं हो सकता। ये सूरत हमें दर्श देती है, सूरतुल माइदा, कि कहीं ना कहीं एक मकाम इंसान की जिंदगी में आएगा जहां पे उसको स्पष्ट करना होगा, साफ करना होगा कि नहीं, अब हम दो नाव पर सवारी नहीं कर सकते, गिर जाएंगे। और अल्लाह के यहाँ हाजिर भी होना है। देखिए पहली आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
मुखातब कौन लोग हैं? ईमान वाले। ये अल्लाह ताला ने या यो नास नहीं कहा कि ऐ लोगों, ईमान वालों से कहा। तो जो भाई ये समझते हैं कि हम ईमान ले आए हैं और ये ईमान गारंटी है जन्नत में जाने की, तो वो गलत सोचते हैं। ईमान लाने के बाद क्या क्या करना है अब अल्लाह बयान कर रहा है, और हम डिफेंसिव मोड में चल रहे हैं, है ना। हम जो हैं फ्रंट पे नहीं हैं, जबकि वो फ्रंट पे होना चाहिए, तो बैक फुट पे हम। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, औफू बिल उकूद। अक़्द उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल होता है, अहद व पैमान के माने में होता है। उकूद जमा है अक़्द की। वफा औफा का माना होता है पूरा करना। पीछे भी आयत गुजर चुकी है, उसे पूरा पूरा बदला देंगे, है ना। औफू बिल उकूद, अहद व पैमान को पूरा करो। ये पहली चीज अल्लाह ने बयान किया सूरत के शुरू में। अब आप सोचिए कि क्या अल्लाह कहना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या अहद व पैमान है? एग्रीमेंट की बात हो रही है। कैसी एग्रीमेंट? अल्लाह कह रहा है कि अहद व पैमान को पूरा करो। अरे पहले हम जानेंगे तब ना पूरा करेंगे कि किस अहद व पैमान की बात हो रही है, किस कैसी एग्रीमेंट की बात हो रही है। एग्रीमेंट है, ऐसा एग्रीमेंट है। मुफस्सिरीन ने बहुत से अहद व पैमान का जिक्र किया। मैं दो चीज़ों का खास जिक्र कर देता हूँ। सारे इंसानों को पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एग्रीमेंट किया था कुरान में, अलस्तु बिरब्बिकुम। सारे इंसान जो आज कुफ्र की हालत में, जो आज शिर्क की हालत में है, जो आज निफाक की हालत में है, और जो आज ईमान की हालत में, सब जितने लोग थे जो दुनिया में आ चुके हैं, जो आए हुए हैं, जो आएंगे क़यामत की सूरत तक, सबको अल्लाह ने पैदा करने के बाद आलम अरवाह में एक एग्रीमेंट किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूँ? सारे लोगों ने कहा कालू बला, हाँ क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, अल्लाह तुम्हारा रब है। अल्लाह कह रहा जब एग्रीमेंट किए थे तो उसको पूरा करो। वहाँ कहे थे ना कि हाँ अल्लाह तुम्हारा रब है, तो मुफस्सिरीन ने इसका जिक्र किया है। दूसरा माना जिक्र किया गया है कि बाद में हिल्लत और हुर्मत का बयान होगा। अल्लाह कह रहा है कि देखो अब इसके बाद जो कुछ मैं बयान करूंगा इस आयत करीमा के अंदर, इस पूरी सूरत के अंदर, उसको पूरा करना। ये सुनकर भूलने वाली चीज नहीं, ये सुनकर नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। अब पता चल गया कि हाँ ये चीजें अल्लाह कह रहा है, तो हमको उसको पूरा करना है। समझा नहीं बात? कितनी बेहतरीन बात अल्लाह ताला ने शुरुआत में बयान किया, अय्युहल्लज़ीना आमनू। किससे कह रहा है अल्लाह? ईमान वालों से। ईमान वालों से कह रहा है कि अहद व पैमान को पूरा करो। तो जब हम ईमान वाले हैं और ईमान लाने से जन्नत वाजिब हो जाएगी, तो फिर क्यों अल्लाह कह रहा है अहद व पैमान पूरा करो? तो काफी नहीं मान लाना? नहीं, ईमान एक एंट्री पास है, जो हम दाखिल हो गए इस्लाम में। अब वहाँ बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, बहुत सारे काम है करने वाले। अब वहाँ जो जो काम है अल्लाह उसको बयान कर रहा है। अल्लाह ने पहले कहा उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम, तुम्हारे लिए चौपाए जानवरों को हलाल किया गया है। वो जानवर जो चरते हैं उसको क्या तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। कुछ नाम नहीं लिखा गया कि कौन कौन जानवर है। इसकी सारी तफसील आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल में मिलेगा। जब किसी भी हदीस की किताब में किताबुत ताआम में जाएंगे, खाने की किताब, क्या क्या खाने वाली चीज़ें, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ बयान करते हैं। इसमें भी बयान है, लेकिन डिटेल वहाँ मिलेगी आपको। इसीलिए कुरान और हदीस को लाजिम मंजूर कहा गया है। इसके बगैर, कुरान के बगैर हदीस अधूरी है, और हदीस के बगैर कुरान अधूरा है। हदीस क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फेल और अमल को हदीस कहते हैं। सुन्नत कहते हैं। सुन्नत हदीस एक ही चीज़ है। आपने क्या कहा, क्या किया और क्या करने का हुक्म दिया। बहीमतुल अनआम का की तफसीर हम कुर्बानी के मौके पर अक्सर सुनते रहते हैं कि 4 जानवरों का नाम बहीमतुल अनआम है ना। इसमें एक चीज जो बयान किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि इल्ला मा युतला अलैकुम, इल्ला इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जैसे क्या होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, पहले सबका इनकार कर दिया, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह, है ना। इल्लल्लाह इस्तेमाल होता है ना। ये एक ग्रामर है अरबी का कि पहले आप सब माबूद के इनकार कीजिए, तब अल्लाह का इकरार करिए। अब अल्लाह का इकरार भी कर ले और दिगर माबूद से भी हम एग्रीमेंट करके कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो एक मुसलमान बनने के लिए क्या है? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं, कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। चाहे कोई कितना बड़ा ऊंचा मकाम वाला क्यों ना हो, वो माबूद नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए बहीमतुल अनआम को हलाल किया गया। खाने की बात हो रही, वो जानवर जिसको हम खा सकते हैं, जैसे बकरा बकरी, भेड़,
गाय, ऊँट, ये सब चीज़ों के बारे में बयान हुआ और इन चीज़ों की कुर्बानी भी होती है ना, सिवाय उसके जिसके बारे में आप पर तिलावत की गई, पढ़ी गई, बतलाई गई। किसके बारे में बतलाया गया वो सब आगे आएगा। किसके बारे में बताया गया जो हलाल है, इल्ला का मतलब जिसके बारे में ए नबी आपके ऊपर पढ़कर बताया गया कि चीज़ें हराम हैं। अब ये चीज़ें कौन कौन हराम चीज़ें वो आगे इंशाअल्लाह ताला आएगी। अल्लाह कह रहा है गैरा मुहल्लिस सैद व अंतुम हुरुमुन, जब तुम एहराम की हालत में रहो तो शिकार ना करो। सैद कहते हैं स्वाद या दाल को शिकार करना, उसी से उर्दू में एक लफ्ज आता है सयाद, शिकारी। सैद अरबी का लफ्ज भी उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। जब तुम एहराम की हालत में रहो तो शिकार ना करो, ये मना किया गया है, हुर्मत की बात है। और ये एक तो हलाल चीज बयान हुआ, बहीमतुल अनआम जो है वो हलाल है। अब हराम कौन से है कि तुम जब एहराम जो चीज़ें बयान हुई और एहराम की हालत में तुम शिकार ना करो, ये हुज्जाज के लिए और जो मोतमरीन में उम्रा करते उनके लिए कि जब वो एहराम बांध लें अब शिकार नहीं कर सकते। पहले ज़माने में क्या था, आज मक्का एक सिटी हो गया है ना, एक हब हो गया, पहले नहीं था वैसा। पहले जंगलात पहाड़ी इलाके थे, कहीं से भी कोई भेड़िया, कोई दरिंदा, कोई जानवर है ना, कोई पंजा वाला, कोई दांत वाला दबोचने के लिए आ जाता था। अगर वो अटैक करे तो आप डिफेंस कर सकते, उसको मार सकते, खुद से नहीं। अब पहले क्या होता था कि लोग हज पे गए तो सुस्ता रहे हैं तो तीर कमान किसी को मार दी, चलो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, नहीं कर सकते आप इंटरटेनमेंट शिकार का नहीं कर सकते। आपके ऊपर हराम है कब, हालत एहराम में। एहराम से बाहर आके तो कर सकते हैं, हालत एहराम में आप खुशबू नहीं लगा सकते, हालत एहराम में आप बीवी से हम इस्त्री नहीं कर सकती, सब चीज़ें हैं ना जो हराम की गई है। उसमें एक चीज़ यहाँ अल्लाह ने बयान किया। क्यों बयान किया? हो सकता था उस जमाने में कि साहबा को भूख लग गई हो और ये चीज़ खाने का मन नहीं कर रहा, तो उधर से ऊँट आ उसे शिकार कर लेते खाने के लिए। तो नहीं, आप इबादत के लिए एहराम बांधे हुए, आपको जो मैसर है खाइए, बाकी आपको उधर नहीं जाने, क्योंकि शिकार एक इंटरटेनमेंट है। उसमें दो फायदे, एक तो मज़ा आता है, दूसरी खाने की चीज़ें मिल जाती है। जैसे लोग शेर का शिकार क्यों करते हैं? उसके खाल के लिए, बड़े कीमती से खाल माने जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। खैर, यहाँ पे अल्लाह ने कहा कि जब तुम एहराम की हालत में रहो तो शिकार ना करो। इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, जो चाहता है हुक्म देता है। तब क्या हुआ, अगर थोड़ा सा कम अकली से हम काम लें तो हम तो कह सकते तो मनमानी है, अल्लाह जो चाहे कर देगा, तो भाई उसकी हिकमत होनी चाहिए। नहीं, ये गलत थिंकिंग है, मतलब ये नेगेटिव थिंक है। पॉजिटिव क्या, अल्लाह जो चाहता करता है, ये अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। अल्लाह को कोई काम करना है तो किसी से पूछने की जरूरत, किसी से मशवरे की जरूरत नहीं है, जो चाहता है करता है। लेकिन हमारा ईमान है, अकीदा है कि अल्लाह खैर ही करता है, बुरा नहीं करता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। तो ये हम हकीकत माना ना समझे कि इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जो चाहता है वो फैसला करता, हुक्म देता। अरादा युरीदु में होता है चाहना, है ना, उसी से उर्दू में इरादा है। अब क्या चाहते हैं, आपका क्या इरादा है, मा युरीद। आगे आयत नंबर 2 अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुहिल्लु शाइरल्लाह, तुम अल्लाह की शायर को हलाल ना करो। ला तुहिल्लु, हलाल ना करो उसको, यानी जिन चीज़ों को अल्लाह ने हराम कर दिया है उसको तुम हलाल ना करो। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से, सूरह बकरा में गुजर चुकी थी। तो अल्लाह ने जिस चीज़ की निशानदेही कर दी है, यानी ये चीज़ें हलाल है और ये चीज़ें हराम है। शायर किसको कहा जाता है कि अल्लाह ने जब बांट दिया कि ये हलाल ये हराम है, तो अब हलाल को हराम और हराम को हलाल तो मत करो। ये अल्लाह यहाँ पे बयान करना चाहता है, अब मत करो। अल्लाह का फैसला हो चुका है, अल्लाह बयान कर चुका है, अब हम अपने तौर पर नहीं लगा सकते। यहाँ पे एक नुक्ता याद रखें कि आप देखेंगे शरीयत इस्लामिया के अंदर जिस दिन को हम और आप मानते हैं, जिस चीज़ को अल्लाह ने हलाल किया है, खाने पीने की बात हो या खाने पीने के अलावा की चीज़ों को, हर हलाल चीज़ हमारे हक में, हमारे फेवर में फ़ायदा देने वाली चीज़ है। आप देखिए कि मुसलमानों को खाने पीने के मामला में अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया है वो सब साइंटिफिक तरीके से उसके बॉडी को फायदा पहुंचाने का। आप उठा किसी भी चीज़ के ऊपर सर्वे करें, जिन चीज़ों को अल्लाह ने खाने पीने के मुताबिक हराम किया है, आप उन चीज़ों के बारे में स्टडी करें, वो सब चीज़ें इंसानी सेहत के नुकसान देंगी। वो चीज़ें इंसानी सेहत के लिए
नुकसानदेह है। यही तो अल्लाह ताला की शान है। आज़ान हो रही है, आज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। मस्जिद कहाँ बनी है? हाँ वो होगा 45 होगा एक ही बार चल फिर बंद करना पड़ेगा। जनवरी का शुरू होगा, पहले भी थे ना 5 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस दिन की खूबसूरती में खूबसूरती ये बनाया है कि जो चीज़ें खाने पीने की चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए, वो सब हमारे सेहत के एतबार से फ़ायदेमंद है। सेहत के एतबार से फ़ायदेमंद है। और जो चीज़ें हराम हैं वो सेहत के एतबार से नुकसानदेह है। अब देखिए शराब, क्या शराब पीने से आँख मजबूत होता है? सोचिए, गंदी चीज़ है। इसी तरीके से खिंजीर का गोश्त, अब इन चीज़ों को देख ले, जिन चीज़ों को भी अल्लाह ने, कुत्ते का गोश्त, ये सब हराम है मुसलमानों के लिए। अब देख ले, उससे उसके सेहत को फायदा नहीं है। अल्लाह ने ये इतना इसीलिए कहा था इन्नल्लाह तय्यबुन, अल्लाह ताला बेशक पाक है, युहिब्बुत तय्यब, पाक चीज़ों को पसंद करता है। अल्लाह पाक है और पाक चीज़ों को अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह ने यहाँ पे बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुहिल्लु शाइरिल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह के शायर को हलाल न करो, यानी जिन चीज़ों को अल्लाह ने हलाल किया उसको हराम मत करो, जो हराम किया उसको हलाल ना करो। बोला शहरल हराम, और ना तुम हुर्मत वाले महीनों की बेअदबी करो। यहाँ पे तहिल्लो का माना ये भी कर सकते, तो हिल्लो का माना बेअदबी भी है कि अल्लाह के शायर की बेअदबी ना करो, बेइज्जती ना करो। वला शहरल हराम, और ना ही हुर्मत वाले महीनों की। और आप जानते हैं हुर्मत वाले महीने कौन कौन से हैं? 12 जो इस्लामिक महीने हैं उसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीने कौन कौन से? जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम, ये तीनों पैदर पे हैं। एक महीना आता है रजब का। हुर्मत वाले महीना किसे कहते हैं समझ लो। जमाने जाहिलियत के अंदर इन महीनों का बड़ा एहतराम किया जाता था। जब इस्लाम गालिब नहीं आया था मक्के के अंदर, उस वक्त भी जो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे या अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, वो लोग भी इन 4 महीनों का बड़ा अदब और एहतराम करते थे। जैसे जंग जिदाल नहीं करते, मारपीट नहीं करते, कत्ल गारतगिरी नहीं करते, झगड़ा लड़ाई नहीं करते, फितना फसाद नहीं करते, रुके रहते थे। जब ये महीना ख़त्म होता तो जो भी अपनी लड़ाई झगड़ा जो है अपना करते थे। इस्लाम के आने के बाद अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बरकरार रखा। कुछ चीज़ें ऐसी है शरीयत के अंदर जो ज़माना जाहिलियत में भी थी और आज इस्लाम के आने के बाद भी है। उसमें से एक चीज़ ये भी है कि अल्लाह ने इस महीने की हुर्मत को बरकरार रखा और कई मकामात पे कहा कि हुर्मत वाले महीनों के अंदर फला तज़लिमू बिहिन्ना अनफुसकुम, तो अपनी जानों पर जुल्म ना करो। हुर्मत वाले महीने के एक ये माना हुआ, दूसरा माना देखें 12 महीनों में 4 महीने जो है और उसमें एक रमज़ान का महीना, क्योंकि रमज़ान हुर्मत का महीना नहीं है लेकिन सवाब के एतबार से सारे महीनों का वो सरदार है रमज़ान मुबारक। ये चीज़ तुम जानते हैं, रमज़ान के बाद 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले, जिसमें नेकी का दर्जा बुलंद हो जाता है। आप कोई भी नेकी करें अल्लाह ताला उसका सवाब बढ़ा चढ़ा कर देता है। इन हुर्मत वाले महीनों में आम महीनों के मुकाबले में कोई गुनाह करेंगे तो सज़ा भी ज़्यादा होता है। तो जब ये 4 महीने हम पाएँ तो कसरत से नवाफिल रोज़ों का एहतमाम करें, सदका व खैरात का एहतमाम करें, नमाजों का नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत का एहतमाम करें और दीगर जो चीज़ें ज़िक्र अस्कार वगैरह इस सब का एहतमाम करें। ये समझिए कि अल्लाह ताला हर इंसान मुसलमान की ज़िंदगी में ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इससे फ़ायदा उठाइए। बोनस कह सकते हैं, अल्लाह बोनस दे रखा और ज़्यादा भी करें। इन 4 महीनों में कौन कौन से हैं? रमज़ान के बाद एक महीना आता है शव्वाल, एक शव्वाल को ईद उल फितर होती है। शव्वाल के बाद आता है जिलकादा, ईद वाले महीने के बाद जिलकादा, जिलहिज्जा, मुहर्रम, लगातार 3 महीने 90 दिन, और एक रजब का महीना आता है जो जमादिल आखिर और शवाल के बीच में आता है। अल्लाह ने कहा और हुर्मत वाले महीनों की बेदबी ना करो, वलल हदिया वलल कलाइदा, और ना हदी की और ना कलाइद की। देखिए हदी और कलाइद जो है दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस है दोनों के दरमियान। हदी किसे कहते हैं? हदी वो जानवर जो हाजी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए लेकर जाए उसको हदी कहते हैं। और हम लोग जो जानवर कुर्बान करते हैं उसको नहर बोलते हैं। हमारी बात, कुर्बानी में जो जानवर हुज्जाज लेकर जाते हैं या अब तो वहाँ पे जो मिलता है तो उसको हदी कहता है, जो कुर्बानी के मौके, हज के मौके पर कुर्बान किया जाए हाजियों की तरफ से, उसको हदी कहा जाता है। एक होता है कलाई, वही हदी जानवर है लेकिन उसमें एक पट्टा लगा देता है पहचान के लिए,
गर्दन में कुछ बांध दिया जाता है। अब उतनी भीड़ में कैसे पता चलेगा मेरा जानवर कौन सा है ना? एक कलर के एक रंग के कई जानवर होते हैं। अब हमारा जानवर खुल के उसके खेमे में चला गया, उसका जानवर खुल के हमारे खेमे में आ गया। तो उस जमाने में एक निशान लगाते थे, गर्दन में कुछ पट्टा उट्टा बांध देते थे, कुछ लिख देते थे, या दीगर सूरतें हो सकती हैं, एक दो सूरत बयान की जाएगी। तो दोनों एक ही चीज़ है। हादी में वो जानवर जो हाजी जो है अल्लाह के रास्ते में कुर्बान के लेके जाते थे, कलायद भी वही चीज़ है, लेकिन उसमें एक पट्टा बांध देते थे। वही हादी है, उसमें एक पट्टा बांध दिए तो कलायद हो गया, और पट्टा नहीं बांधे तो क्या हो गया? हादी। लेकिन दोनों की चीज़, दोनों को हाजी लेके जाते हैं। हाजी के अलावा जो जानवर हम कुर्बान करते हैं उसको उज़हिया बोलते हैं, नहर बोलते हैं, इस तरह कुछ भी हम बोल सकते हैं। अल्लाह ने कहा कि हादी और कलायद की भी तुम बेअदबी ना करो। बेअदबी मतलब समझ रहे कि कोई हाजी जा रहा है अपने जानवर को लेकर तो उसको छीन मत, या उसका जानवर उसके हाथ से छूट के कहीं चला गया, अब आपको पता है कि ये फला साहब का, फला हाजी साहब का ये जानवर है, तो उसको लौटा दो, उसको लेकर हजम मत करो। ये अल्लाह बयान करे, उसकी बेअदबी मत करो, उसके साथ कोई रोक टोक का मामला ना करो कि हम आपको जाने नहीं देंगे, या तो आप जाएंगे तो जानवर जाए, कोई एक जाएगा, ऐसा भी ना करो। हर चीज़ से अपने आप को रोको। और कलायत उसी माने में वला आमीनल बैतल हरामा, और ना मस्जिद हराम आने वाले लोगों को उनके रास्ते से रोको। जैसे कि सन 6 हिजरी में हुआ कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा काफिला लेकर मक्का मदीने से निकले कि हम लोग इस साल उम्रा करेंगे, तो उनको हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने सहाबे रसूल को रोक दिया गया कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो अल्लाह के नबी ने कहा उम्रे के नहीं हम नहीं जा सकते, क्योंकि उस वक्त मक्का का कंट्रोल इन लोगों के हाथों में था, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के हाथों में था। उन्होंने रोक दिया, आप नहीं जा सकते। तो रोका कि नहीं रोका? और ऐसा रोका कि नहीं जाने दिया, समझ रहे, नहीं जा सकते। यहाँ भी अल्लाह के वला आमीन अल बैत अल हराम, अगर कोई अमन के साथ जाना चाहता है मस्जिद हराम तो उसको ना रोको, मना मत करो उसको कि हम आपको जाने नहीं देंगे। और ये सिर्फ वहाँ की बात नहीं हो रही है। आप मान लीजिए कि यहाँ से एक आदमी जा रहा है हज या उम्रे के लिए, मस्जिद हराम वही जाना होता है, उसके अलावा कोई होता नहीं है। तो बात होते शरपसंद उसको यहीं पर रोक देते हैं, उसका पासपोर्ट को चोरी कर लेना रहेगा, जाएगा, ये सब रोकने में आए। उसके साथ कोई नुकसान पहुंचा देते ताकि वो जा ना सके। हर तरह की चीज जिससे उसको रोका जाए। और कुछ नेचुरल चीजें हैं, उसके साथ कुछ मसला हो गया, घर में कुछ खुद से नहीं, कोई एक अलग बात है, कोई और ना रोके उसको। जो मस्जिद हराम जाना चाहता है, सन 6 हिजरी में मुसलमानों को रोक दिया गया, और वहाँ पर हुदैबिया का एक एग्रीमेंट हुआ, अदब पैमान हुआ, जिसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। कि बहुत सारे उसमें शराइत थे, जैसे एक मशहूर शर्त ये है कि हमारा आदमी अगर आपकी तरफ चला जाएगा तो आप लौटा देंगे, लेकिन आपका आदमी हमारी तरफ आएगा तो हम नहीं लौटाएंगे। इस पर अल्लाह के तैयार हो, कोई बात नहीं। क्यों तैयार हो गए? आपको अपनी दावत पर पक्का यकीन था कि हमारा आदमी जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता। उसको अल्लाह की जब मोहब्बत हो जाएगी, नबी से मोहब्बत हो जाएगी, कैसे जाएगा उधर, है ना? और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, सहाबा इकराम बड़ा गुस्सा, बड़े नाराज हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल आवाज़ लगाओ कि वापस चलना है। तो बिलाल ही बोले कभी नहीं, और उम्रा कर ही के जाएंगे, तो निकले तो करके जाएंगे। अल्लाह के रसूल अब आगे बढ़िए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अहद व पैमान का ख्याल रखा, लिहाजा हम सबों को भी रखना चाहिए। इसीलिए ऊपर में अल्लाह ने कहा औफ बिलउकूद, अहद व पैमान को पूरा करो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं। बहुत गुस्से में थे सहाबा इकराम कि हम बड़ी उम्मीद से निकले थे मदीने से कि अब जाएंगे और अपने सारे काम को अंजाम देंगे, लेकिन लोग रोक दिया। और एग्रीमेंट के तहत आप अगले साल, इस साल तो नहीं, अगले साल आप लोग उम्रा के लिए आ सकते हैं, है ना? यही ना मुआहदा हुआ था, एक साल रुकना होगा। और वो बड़े जोशीले सहाबा थे, नए नए मुसलमान रहे थे, उनका जज्बा था, शौक था, ज़ौक़ था। कोई आदमी, कोई सहाबा अल्लाह के रसूल की बात को नहीं सुन रहा था। यहाँ पे एक पहलू याद रखें, नहीं सुनने का मतलब ये नहीं कि मोहब्बत नहीं थी अल्लाह के नबी से, जज्बाती हो गए थे वो लोग कि हम अल्लाह की इबादत के लिए जा रहे हैं, उम्रे के लिए, और दिया गया। वहाँ पे एक खातून का फॉर्मूला काम आया। ये चीज़ याद रखिए कि इस्लाम में औरतों का ही बहुत बड़ा मकाम है, और बहुत ऐसे मकामात पर औरतों ने सिचुएशन को कंट्रोल किया है। अब वहाँ से सहाबा हिल ही नहीं रहे। अल्लाह के रसूल ने कहा चलो वापस चलते, एग्रीमेंट हो चुका है, अगले साल आएंगे। सहाबा बोले नहीं जाएंगे, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, चलते हैं, हम लड़ते हैं, और क्या, शहीद हो जाएंगे। शौक देखिए, जज्बा शहादत का। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने, उनको जब खबर मिली, उसी काफिले में थी उम्मे सलमा, उनको खबर मिली कि सहाबा हिल ही नहीं रहे, तो उन्होंने इजाज़त मांगी कि अल्लाह के नबी से हमारी मुलाकात कराई जाए, जिस खेमे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डालेंगे। उनको इजाज़त मिली। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी,
सहाबा आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, बड़े जज्बाती हो गए, बड़े शौक से निकले थे कि उम्रा कर ही कर लौटेंगे, लेकिन ऐसे मामला हो गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ बात तो सही है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, वापस जा भी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे पहले बाल छिलवाइए, उसको कहते हैं हलक करवाइए, आप यहीं पर अपने बाल को छिलवाइए, हलक करवाइए, क्योंकि आप उम्र ही के हालत में हैं। और अल्लाह के रसूल को ये मशवरा बहुत पसंद है, कब से कह रहे वापस जाओ, कुछ जा ही नहीं रहा है जज्बात में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपना हलक करवाया, आपको देखा देखी सारे सहाबा करवाए। हलक हज या उम्रा की आखिरी कड़ी होती है, उसके बाद हज उम्रा खत्म। सहाबा समझ गए जब हलक हो चुका तो अब मक्का जाने की जरूरत है, वहीं से वो लोग वापस बैठ हो गए। तो औरतों का भी बड़ा मकाम है, इसीलिए जो लोग अपनी बीवी को अहमियत नहीं देते, कह रहे तुम लोग मोटा दिमाग के होते हैं तो क्या पता, कभी कभी दिमाग ले लेना चाहिए, लोग मशवरा दे देती अच्छी, इससे ऐतराज नहीं है किसी को माशाअल्लाह। तो एकदम बिल्कुल उनको भोदा नहीं समझना है कि उनको जानती ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। देखिए उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कितनी बेहतरीन मशवरा दिया, वो मशवरा काम आया। जो सहाबा जज्बाती तौर पर वापस जाने को तैयार नहीं थे, तो सब अल्लाह के रसूल के को देखे हलक करा तो सब करवा लिया, और वहाँ से काफिला जो है वापस मदीने की तरफ चला गया। तो ये भी है कि ना रोका जाए किसी भी हुज्जाज को, उम्रा करने वालों को, चाहे दुनिया किसी गोशे या खित्ते से जाए, उसके राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए, उसके लिए आसानी पैदा करना चाहिए। आगे अल्लाह कह रहा है यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, जो लोग अपने रब के फजल और उसकी खुशी तलाश करने निकले हुए हैं। ये उम्रा करने वाले क्या क्यों जाते हैं, वो अपने रब का फजल तलाश करने जाते हैं, उसकी खुशनुदी के लिए जाते हैं कि अल्लाह राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, चाहे हज करने वाले हाजी हो या मोतबरीन उम्रा करने वाले हो। आगे अल्लाह ने कहा वइज़ा हलल्तुम फस्तादू, हाँ जब तुम हलाल हो जाओ तब तुम शिकार करो। जब हलाल हो जाओ मतलब हलाल मतलब क्या हो, हज या उम्रे से फारिग हो जाओ, अब तुम्हारे लिए शिकार करना चाहिए, अब आप शिकार कर सकते हैं। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम, ये टुकड़ा आप आज के दर्स में यहाँ से लेकर जाए कि अल्लाह ने देखो दुश्मनों के साथ क्या मामला करने का हुक्म दिया है, कि जो दुश्मनों ने तुमको तकलीफ पहुंचाई, अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम, तुमको मस्जिद हराम जाने से रोक दिया, अन तातदू, तुम उनके साथ ज्यादती ना करो। यानी जब तुम पावर में आ जाओ तो अब उन चीज़ों को भूल जाओ कि हाँ सन 6 हिजरी में हमको रोका गया था, सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया, मक्का पे मुसलमानों का कंट्रोल हो गया है ना, अबू सुफियान भी सरेंडर हो गए, बाद में मुसलमान हो गए माशाअल्लाह, जो अबी मुआविया के वालिद थे और आपके सल्लल्लाहु के ससुर भी थे। उम्मे हबीबा उनकी बेटी थी जिनसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया था। अल्लाह ताला यहाँ पे एक दर्स दे रहा हम लोगों को, दुश्मनी में इतने पागल और अंधे हो जाते हैं कि उसको कैसे निस्तो नाबूद बर्बाद किया कर दिया जाए, तो बिल्कुल उसको पागलपंती कहा जाता है, जुनून जिसको कहा जाता है। वो मेरा दुश्मन है, उसको तो बख्शेंगे नहीं, उसको खाली मौका मिले सिर्फ हमको। अल्लाह कह रहा है वला यजरिमन्नकुम शनआन कौम, जिस कौम ने तुमसे दुश्मनी की, दुश्मनी क्या की, अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम, तुमको रोक दिया गया था ना। साहबा कितने उतावले हो गए थे लड़ने के लिए कि चलिए लड़ते हैं, क्या हुआ, मरेंगे, शहीद होंगे, एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आप चलिए। अल्लाह ने कहा नहीं, ये गुस्सा ठंडा करो, इस चीज को दिमाग से निकालो। उन लोगों ने तुमको रोका, शायद किसी सहाबा के दिल में ये बुग्ज हो कि अब तो मक्का फतह हो गया, अब देखो बताते हैं कौन कौन उधर से था, हमको सब याद है, बहुत होंठ पी के हम लोग रहे थे, खून के आंसू रोए थे। अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अल्लाह ने कहा कि जिन लोगों ने तुमको मस्जिद हराम से रोक दिया, अंता तदू, तुम उनके साथ ज्यादती ना करो। अब कैसा दिन है हम लोग समझ सकते हैं कि दुश्मनों के साथ भी जो दुश्मन नुकसान पहुंचा चुका है, पहुंचाने की सोच नहीं रहा, पहुंचा चुका है, उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के साथ कैसा बर्ताव करने का हुक्म दे रहा है, ये चीज किसी दिन के अंदर नहीं मिली। इतनी बेहतरीन तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा को दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा यह है इतनी कि आप उनको समझाइए। अब चीज भूल जाओ, अगर उन लोगों ने 6 हिजरी में आपको रोका तो अल्लाह ने 8 हिजरी में आपको सब ऊंचा मक्का दे दिया। क्या ये खुशी की बात नहीं कि जिस मक्के में जाने के लिए परमिट की जरूरत पड़ती थी, उनके एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर दस्तखत करने पड़ते थे, उनकी बेजा बकवास बातों को सुनना पड़ता था, न सिर्फ सुनना बल्कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ता था। आज अल्लाह ने पूरा मक्का कंट्रोल मुसलमानों के हाथ में दे दिया। क्या अल्लाह करम नहीं है ना। यहाँ एक दूसरा नुक्ता याद रखिए, मकसद को टारगेट करें।
मकसद के हुसूल में बहुत सी रुकावटें आएंगी, आप इन रुकावटों का ध्यान ना दें, आप मकसद का ध्यान दें। आजकल ऐसे ही होता है, हम एक टारगेट लेके चल रहे हैं, उस टारगेट में जो रुकावटें आ रही है बस आगे से हट उधर चलेंगे। लोग तो यही चाहते हैं कि आपको राय रास्ते से भटका दें और आप अपने रास्ते को छोड़कर उस रास्ते पर ध्यान दें। आपका टारगेट है कि हमको ये बनना है। बहुत से लोग आपको ताना मारेंगे, बहुत से लोग आपको तानो तशनी करेंगे, आपको क्या है जुमले कसेंगे, ऐसे ऐसे बातें करेंगे ताकि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। कहाँ डाइवर्ट हो जाए? असल चीज से हटकर नगद चीज की तरफ। ऐसी ना होता है। मकसद का हुसूल सबसे बड़ी चीज है। मकसद के हुसूल में बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, तब आप अपने मकसद को पालेंगे। जैसे यहाँ अल्लाह ने कहा कि दुश्मनों ने जो तुमको रोका था मस्जिद हराम जाने से, भूल जाओ, अंता तदु, आप उनके साथ ज्यादती ना करना। आगे अल्लाह क्या करा? वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, बिर मतलब कहते हैं भलाई को, भलाई और तकवे के काम में एक दूसरे की मदद करना। हमेशा याद रखना कि एक हमारा भाई भलाई का काम कर रहा है तो आप उसके काम में टांग ना लड़ा। तो ऐसी होता है ना, वो क्यों कर रहा है, सारा क्रेडिट तो उसको मिल जाएगा, उसके नाम हो जाएंगे, उसकी पहचान हो जाएगी, और हम ये सोचकर उसके काम में दखलंदाजी करते हैं, यहाँ तक कि काम ही बिगाड़ देते हैं, काम ही बिगाड़ देते हैं। अल्लाह कह रहा है कि जब देखो कोई भलाई का काम कर रहा है उसको सपोर्ट कर। नहीं कर सकते सपोर्ट, दिल से दुआ कर दो अल्लाह के सामने कि अल्लाह उस काम को तू कामयाब कर, भलाई का काम कर रहा है। वह तकवा, और तकवा है काम, एक दूसरे की मदद करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और मासियत के काम में एक दूसरे की मदद ना करो। गुनाह और मासियत के काम में एक दूसरे की मदद ना करो। कोई आदमी गुनाह का काम कर रहा है, हम साथ में नहीं जा रहे काम करने, लेकिन हमसे कह दिया कि देखो ये सामान हमको दे दो, हमको वहां जाना है ना, तो हम उसको उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। एक आदमी आगे आगे फिल्म देखने जा रहा था, बाइक दीजिए, क्या करेंगे? सोचे, मिसाल है कि हमको जाना है, बाइक दीजिए, क्या करेंगे? उसको खुश करेंगे कि अल्लाह? समझौता नहीं कर सकते, हर जगह समझौता नहीं हो सकता। इसलिए मैंने शुरू में तमहीद में कहा कि हम लोग डिफेंसिव मूड में चल रहे हैं कि सबको खुश करना, सबको नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप सुन्नत से शादी कीजिएगा तो आपकी बुआ खाला सब खिलाफ हो जाएंगे आपकी। आप सोचेंगे कि इस्लाम में बारात का कंसेप्ट नहीं है, हम 5 आदमी जाएंगे, खालू पहले नहीं आएंगे, नहीं हम जेबे नहीं करेंगे, मेरी बेइज्जती हो गई, फूफा भी नहीं जाएंगे, मामा लोग तो पहले से बोल देंगे कि भाई आप लोग अपने कर लो। क्या करें? अल्लाह को राजी करे कि सबको राजी करे? इस सवाल अल्लाह ताला हम लोग को आजमा रहा है जिंदगी में, लेकिन हम लोग क्या कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि हमें क्लियर है कि चलो सबको लेके चलना है, बाद में अल्लाह माफ कर देगा। नहीं माफ किया तो सवाल है कि अगर नहीं माफ किया और इसी चीज से हमारी पकड़ हो गई तो तब क्या हो सकता है? एक औरत ने बिल्ली को बांध दिया, भूखे रखा, बिल्ली मर के जहन्नम में चली गई। कितनी छोटी सी बात है ना, अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया। तो हम समझौता नहीं कर सकते हर जगह। नबी की तालीम इतनी आला तालीम है, इतनी A1 उनकी तालीमात हैं, और उसके साथ हम कैसे समझौता कर? आजकल ऐसी तो हो रहा समझौता, समझौता ही तो चल रहा है यहाँ पे। चलो थोड़ा देर के लिए बाइक दे देते हैं, कहीं हम लोग क्या सोचते हैं वो कहीं भी जाए, हम तो ना जा रहे हैं, हम लोग ये सोचते हैं वो कहीं भी जाए, उसने हमसे मदद मांगी, हम तो मदद कर रहे हैं, मदद मांगने आया था, लेकिन हम किस चीज पर मदद कर रहे हैं? यहाँ अल्लाह कह रहा है वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई और मासियत के काम में एक दूसरे की मदद ना करो। जबकि इस्लाम तो मदद का हुक्म देता है, लेकिन सही चीजों में, अच्छी चीजों में। तो हमको डिफेंसिव मूड नहीं ना, याद रखे। देखिए एक बात हमेशा याद रखें, जब कभी भी, हम हमेशा कहते हैं, अपने खुतबात में भी कहते हैं, दर्स में भी कहते हैं कि हम डीपी में कबर की फोटो लगाएं ताकि हमको दिन रात याद आए, यहाँ जाना है, अकेले जाना है, अंधेरे में रहना है, यही असल चीज है, असल मकान है। जब उसको देखेंगे ना डर पैदा हो, उसको हटा देंगे तो डर नहीं पैदा होगा। जैसे अभी दर्द हम सुन रहे हैं ना, तो हमको हार्ट टच लग रहा है, बहुत दिल को छूने वाली बात है। उसके बाद कहाँ फिर अगले हफ्ता उसके बाद जो है शैतान जहन शादी कर देगा, मतलब होता है इतना आदमी, आपके लोग खिलाफ हो जाएंगे आपके। मक्का तो पूरा खिलाफ हो गया अल्लाह के रसूल के, सहाबा की। क्या उन्होंने समझौता किया? नहीं किया। समझना होगा मेरे भाई कि ये जो सूरह है, सूरह माइदा, बड़ी दिल को छूने वाली सूरत है। कि क्या अल्लाह ने बयान किया कि आप भलाई और तकवे के काम में एक दूसरे की मदद करें, बुराई के और गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद ना करें, वरना आप भी उन्हीं में से शुमार किए जाएंगे, है ना। सही मुस्लिम की एक रिवायत है कि एक आदमी अल्लाह के दरबार में बहुत सारी इबादत लेकर जाएगा। नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा सहाबा से कि बताओ मुफलिस कौन है? तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है
जिसके पास ना दौलत है ना माल है, मुफलिस है। अल्लाह रसूल का नहीं है मुफलिस। वो हकीकी मुफलिस वो है जो अल्लाह के सामने नमाज पे नमाज, रोज़ा पे रोज़ा, ज़कात पे ज़कात, हज पे हज, उम्रा पे उम्रा, खैरात पे खैरात, सदक़ात पे सदक़ात, ज़कात पे ज़कात लेकर जाए, पूरा लबल्लब भरा हुआ जाए अल्लाह के सामने। अब जैसे अल्लाह के सामने हाजिर होता है, फरिश्ते रिकॉर्ड खोलते हैं तो पता चलता है आइए 100 लोग 200 लोग पहुंच जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है आपका? ये हमारे नाहक माल छीन लिया था। अल्लाह उसकी नींद उठाते इसको दे देगा, जाओ। वहाँ तो जमीन जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत जहन्नम का मामला है। आपका मेरे साथ ये किया तो उसको उठा के दे देगा। आपका मेरे साथ ये इतने गुनाह कर चुका है, क्या किया है? किसी को गाली दिया होगा, किसी पर बोहतान लगाया होगा, किसी को तोहमत लगाया होगा, किसी का माल नाहक खाया होगा, गुनाह किया होगा, चाहे कोई भी गुनाह हो, चोरी हो, ज़िना हो, जो भी हो। अब सब आ रहे हैं लेने के लिए, यहाँ तक कि आदमी बच गया और सब सवाब खत्म। अब क्या होगा? तो अल्लाह उन लोगों को जो बच गए उनके गुनाह उठा के इसको लो, ओवर लो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि वो हकीकी मुफलिस है। कितना सामान लेकर गया अल्लाह के सामने, नेकी कोई फायदा नहीं पहुंचा सका, कुछ नहीं फायदा पहुंचा सका। तो हम अगर सबको खुश करेंगे तो अल्लाह ना करे हमारे हालात ऐसे हो जाए, और उस वक्त कोई नहीं आएगा कि अल्लाह इसको छोड़ दीजिए, ये हमारे कहने पर ये काम किया था, हम ही नाराजगी की धमकी दे रहे थे। कोई नहीं आएगा। जानते हो लोग क्या कहेंगे अल्लाह के सामने? अल्लाह हम तो मजाक किए, सीरियस हो गए, हम तो मजाक किए थे, तुम सीरियस हो गए, अब इसकी गलती है। वहाँ वो कहेंगे मजाक किए, दुनिया में लड़ाई झगड़ा होता था। तो इसीलिए अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है कि अल्लाह को राजी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही फॉर्मूला का काम किया, अल्लाह को राजी करने वाला फॉर्मूला। उससे अल्लाह ने उनकी दुनिया भी बना दिया और आखिरत भी। और हमारे लिए भी ये चीजें हैं, ऐसी नहीं है। हम जब अल्लाह को राजी करेंगे ना तो अल्लाह हमारी दीन और दुनिया दोनों को समाप्त करेगा, क्योंकि उसी के हाथ में सब कुछ है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त सजा देने वाला। देखिए क्या अल्लाह ने बयान किया। अल्लाह ने ऊपर में ही जो आयत आई, ताउनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि तकवा और भलाई के काम में एक दूसरे की मदद करो, तो कोई सवाब का जिक्र करता नहीं, अल्लाह ने सवाब का जिक्र नहीं किया। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। किस बुनियाद पर? बुराई और गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद करने पर अल्लाह ने सजा का जिक्र किया है। आज के दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। इसके ताल्लुक से कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जैसे आपने शुरू में बताया था क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको सरसरी का होता है। देखिए आगे आयत आएगी, आयत नंबर 3 में जो है ना, आप लोग अगर देख रहे होंगे तो इसमें लिखा हुआ अब आ रहा है क्या क्या हराम है। मुर्दार हराम है और खून हराम है। खून का डेफिनेशन तफसीर जो है हम अगले हफ्ता बयान करेंगे कि कौन कौन से खून जो है वो हराम है, सारी चीज़ें बयान होंगी। लेकिन हिल्लत में जान लें कि वो जानवर जो चौपाए हैं, है ना, वो चौपाए मतलब कि चरने वाले, जो चरते हैं, घास फूस खाते हैं, उसको इस्लाम ने हलाल किया है। जैसे बकरी चरती है, भेड़, दुम्बा, गाय, ऊँट, भैंस, बकरा, बकरी, खस्सी, जो भी चरने वाले हैं। और जानवर बात करें खाने वाले में, जो हराम किए गए जानवर उसमें जीनाब कहते हैं, जो दांत से शिकार करते हैं। एक होते जी मिखलब, जो पंजे से शिकार करते हैं। तो जो जानवर पंजे से और जो दांत से शिकार करते हैं वो हराम है ना। अब उठा के देखिए, शेर से शिकार करता है, पंजे से भी करता है, और भी दीगर जो हो, बंदर हो, बिल्ली हो, कुत्ता, कुत्ते के जो दांत है ये निकले रहते हैं, उससे काटता है इंसान को। तो ये सब जानवर जो है हराम है। लेकिन बकरी है, एक दांत निकला बकरी का, गाय का, ऊँट का नहीं निकला। एकदम सिंपल समझने के लिए, और पूरी तफसील इंशाल्लाह आएगी, बड़ा मजा आएगा सुनने में, पढ़ने में। अभी बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। घोड़ा भी तो हलाल है, कहाँ उसका दांत निकला हुआ है? हाँ खा सकते हैं, बहुत से मुल्कों में खाया जाता है। सर एक आखिरी सवाल है जो कि रिलेटेड है इसी हाँ। पूजा वगैरह। मैंने सवाल बहुत दफा नहीं, जो नमाज का वगैरह बहुत दफा बोलते हैं लोग कि पूजा का नहीं, लेकिन ओकेजन वही रहता है। अभी आने वाला है, मैंने कोई कुछ मिठाई खाने का बोले ना। मिठाई वगैरह देखिए सवाल ये कि हम लोग जिस मुल्क पे रहते हैं यहाँ बहुत सारी अक़वाम हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के लोग हैं, अपने गैर मुस्लिम भाई वगैरह हैं। तो वो लोग भी जाहिर सी बात है अपने त्योहारों में शिरकत करने की गर्ज से, जानते लोग नहीं आएंगे तो कम से कम जो भी खाने पीने की चीज़ें, मिठाई वगैरह जो भी पहुँचा दें। तो अब सवाल ये है कि लेने वाला मुसलमान है तो वो क्या उसके बारे में समझ रहा है, वो समझना चाहता है क्या हुक्म है, क्या ले सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं ले सकते। अगर नहीं लेंगे तो उनको तकलीफ होगी, है ना। और अगर
ले लेते हैं तो क्या करें, खाएं कि नहीं खाएं। अभी देखिए ये सारी चीज़ें मैंने शुरू में बयान कर दिया, मैंने शुरू में इसीलिए बयान किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों का नज़र में भी अच्छे माने जाते थे। ये बात याद रखिए इस चीज़ को कि जो लोग आपकी मौजूदगी मदीने में कई यहूदी थे, उनके कई फैसले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। सवाल ये है कि हलाल और हराम में अल्लाह ने जब हलाल किया है तो अल्लाह ने सोच कर हलाल किया है, और अल्लाह ने जब हराम किया है तो सोच कर हराम किया। अभी अगली आएगी 3 नंबर आयत आएगी, उसमें एक आयत एक टुकड़ा उमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह, वो चीज़ें जो गैरुल्लाह के नाम पर नजर नियाज किया गया हो उसको हम नहीं खा सकते, वो भी हराम है। सिर्फ यहाँ ज़बह की बात नहीं, मिठाई का ज़बह होता है, चावल का ज़बह होता है, आटा का ज़बह होता है, नहीं ये तो एक जानवर की बात होगी। अभी तो आते हैं अशय खुर्दनी, तो खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें आप देखिए कि जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं वो क्या साल भर आती है, नहीं आती। उनके खास त्यौहार फेस्टिवल के मौके पर वो लोग आपको देते हैं, जैसे दिवाली के मौके पर, अभी जो बंगाली पूजा आने वाली उस मौके पर आपको शरीक करते हैं। उसका हुक्म क्या ही जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात देखिए, हिकमत बहुत बड़ी चीज़ है। आप अल्लाह से हमेशा इन चीज़ों की दुआ करें कि अल्लाह आपके जरिए लोगों को हिदायत दे, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। हिकमत के तहत, हिकमत का मतलब ये नहीं हुआ कि वो लेकर आया जाओ हम नहीं खाते, हम तो मुसलमान है, वो सब हराम है, ये सब तरीका सही है, गलत तरीका है। आपके सामने दो चीज़ें, एक तो आप दीन को प्रमोट करें, आप बताएं कि देखिए भाई हमारे दीन में इन सब चीज़ों की मान्यता है, ये हमारा मामला नहीं है, हमारा दीन अल्लाह चलाता है, अल्लाह के नबी आए थे, उन्होंने इस चीज़ों से मना किया है। हमको आपसे पूरी जो है लगाव है, मोहब्बत है, लेकिन हम इन चीज़ों को कबूल नहीं कर सकते, बड़ी मोहब्बत से आप बोले। बाकी आप घर पे बुलाए ना दावत की जमातें, तो अल्लाह उसके दिल में रहम पैदा करेगा। चलो ये इसको कैंसिल करो, दावत ही बुला लेते हैं, पूजा वगैरह खत्म हो गया, एक हफ्ता के बाद आपको दावत दिया तो हम जा सकते हैं। अल्लाह के नबी गैर मुस्लिम की दावत क्या देते हैं, यहूदिया दावत दी थी, आप खाने गए तो उसमें जहर मिला दिया गया था, वो तो मुसलमान नहीं थी। आप इस तरह भी बात कर सकते हैं। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये हदीस की बात नहीं हो रही। या एक तरीका ये है कि आप उसको ले लें लेकिन ना खाएं, आप ना खाएं उसको, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब इसमें आप सवाल मत करेंगे ना, बनसाइल का मामला हो जाएगा। अच्छा ना खाएंगे तो क्या किसी फकीर को दे दे, काम करने वाले की उसको दे दे, या फिर गरीब को दे दे, या जानवरों को खिला दे। हमने सीधा कह दे ना खाएं, जब जो चीज़ हम नहीं खा सकते किसी और को कैसे हम पसंद करें, लेकिन समझौता नहीं कर सकते, हलाल हराम नहीं कर सकते समझौता, मत समझा रही है ना। तो हमें ऐसे रवैये से पेश आना है कि सामने वाले के दिल में घर करना है, ना कि उसको भड़काना है। अब कोई आदमी आपके खिलाफ होगा, ये बात याद रखिए, जब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के अंदर ये नहीं कहा कि अल्लाह के एक मानो, तब तक आप सबके नज़र में अमीन सादिक थे। लेकिन जैसे आप सफा पहाड़ी पर चढ़, आपने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, और पूरी हदीस है कि आपने कहा मक्का और रसूल के, अगर मैं कहूँ पीछे से एक लश्कर आ रही है जो तुम लोगों पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम यकीन करोगे? सारे मक्का ने कहा कि हमने आपको अमीन सादिक माना है, आप सच बोलते, झूठ नहीं बोलते। अगर आप कह रहे हैं कि पीछे के लश्कर है जो हम पे अटैक करेगी, तो हम इसको कबूल करेंगे, मानेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, सब दुश्मन, सब दुश्मन हो जाता है। हम ये फॉर्मूला ना अपना के सामने मर्जी लाठी पीट रही, कहीं कहीं तो ये हिट हो जाएगा, लेकिन हर जगह नहीं, अक्सर फॉलो हो जाएगा, मुखालफत होगी आपकी। इसी का नाम तो दीन है, और जन्नत इसी तरह ना मिलेगी। दर्स के इख्तिताम के ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम तुम सब भाई बहन की हाजिरी को कबूल फरमा ले, आमीन। और हमें दीन की सही समझ अता फरमा, और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन। आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स खत्म हो गया, आप लोग ऑफलाइन हो जाए। यहाँ पढ़ाना रहता है।